Hello students, welcome to my channel, and today we are going to start this chapter called as trigonometry. Guys, trigonometry is one of the important chapters, okay? And as you can see in the weightage of this chapter is 9 to 10 marks, okay? और इस weightage का bifurcation is 2 question comes for 2 marks each, ठीक है? एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क के लिए एंड एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के लिए. गाइज ये जो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ना, इट इज बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है? एंड मार्क माय वर्ड स्टूडेंट्स, ये वर्ड प्रॉब्लम ना बहुत इजी होते हैं, ठीक है? विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट विद आवर चैप्टर. ओके स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम लोग ने ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, राइट? लेट अस क्विकली रिवाइज व्हाटएवर वी हैव स्टडीड इन लोअर स्टैंडर्ड एंड कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, राइट? फॉर trigonometric ratio students, let us quickly take one right angle triangle over here. Okay, ये मेरा right angle triangle है. अब इस right angle triangle में ये angle 90 डिग्री होगा, right? And let us quickly name these vertices as A, B and C. ठीक है? 90 डिग्री के सामने वाला साइड it is going to be hypotenuse. इतना हम लोग को ऑलरेडी पता है, ठीक है? Now I am saying this angle C as theta. ग्रीक अल्फाबेट है थीटा, राइट? एंड थीटा के जो सामने वाला साइड है दैट इज ए बी. वी आर गोइंग टू से दैट साइड एज ऑपोजिट साइड, ठीक है? ओके, नाउ थीटा के जो बाजू वाला साइड जो बचा है बीसी, वन ऑफ द साइड इज हाइपोटेनियस, राइट? एंड ये जो बचा वाला साइड बीसी है ना, दैट इज एडजेसेंट साइड फॉर माय एंगल थीटा. ओके, नाउ ये तो हो गया मेरा ट्राइंगल का डिस्क्रिप्शन. स्टूडेंट्स 9th स्टैंडर्ड में हम लोग ने ऑलरेडी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, ठीक है? एंड इन ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, करेक्ट? एंड लेट अस क्विकली रिवाइज दैट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. 3 जो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़े थे एंड 3 नए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग पढ़ रहे हैं. द वेरी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज साइन थीटा. When I'm saying about sin theta, it is the ratio of the opposite side and the hypotenuse. So the ratio of opposite side upon the hypotenuse. Opposite side is AB and hypotenuse is AC. Correct? Now next is cos theta. Cos theta is the ratio of adjacent side and the hypotenuse. Adjacent side is BC, whereas hypotenuse is AC. Next, tan theta is the ratio of opposite side and the adjacent. Now opposite side is AB for this angle theta and adjacent side is BC. इतना हम लोग ने ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ठीक है? नाउ नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज कोसेक थीटा. दिस इज न्यू फॉर यू ऑल. कोसेक थीटा. Cosec theta is actually hypotenuse upon the opposite. To be more precise, it is the ratio of hypotenuse side upon the opposite. Okay, so hypotenuse upon opposite. So I can say it as AC upon AB. ठीक है? Next is sec theta. Sec theta is the ratio of hypotenuse and the adjacent. So hypotenuse upon adjacent is your sec theta. Hypotenuse is AC and adjacent is BC. Last one, that is cot theta. It is a ratio of adjacent side upon the opposite. So adjacent side upon the opposite. Adjacent side is BC and opposite is AB. ठीक है? If you'll observe this carefully, students, when I'm saying about cosec theta, it is reciprocal of sin theta. ध्यान से देखो sin theta को. It is AB upon AC. करेक्ट? अगर ये AC डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, so this will be 1 upon AB upon AC, right? तो AB upon AC is nothing but your sin theta. Correct? So I can say that cosec theta is reciprocal of sin theta and vice versa. Sin theta का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा है, करेक्ट?
Next is sec theta. Sec theta is reciprocal of cos theta. करेक्ट. यहां पे भी मैं एडजेसेंट साइड जो BC है उसको मैं डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भेज दूंगा. सो दिस विल बी 1 अपॉन BC upon AC. BC upon AC is nothing but your cos theta. And similarly, cot theta is reciprocal of tan theta. Same procedure, students. ठीक है. I hope you guys have understood this, the reciprocal concept. Next is, suppose ये मेरा एंगल 90 है, ये थीटा है. What you can say about this angle A? Can I say ये मेरा एंगल A है वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, राइट? सोच के देखो, बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. इन दैट दिस एंगल इज 90, द अदर वन दैट इज द सेकेंड वन इज थीटा. तो तीसरा वाला 90 माइनस थीटा ही होगा ना, करेक्ट? बिकॉज 180 में से 90 चला गया, करेक्ट? और तीसरा वाला एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा ही होगा. नाउ नेक्स्ट, 90 माइनस थीटा के लिए ऑपोजिट साइड क्या होगा, सोच के देखो. कैन आई से 90 माइनस थीटा के लिए जो ऑपोजिट साइड है वो BC होगा. दिस विल बी माई ऑपोजिट साइड, करेक्ट, फॉर 90 माइनस थीटा. श्योर. अच्छा, वेयर एज ये जो AB है दैट इज गोइंग टू बी योर एडजेसेंट साइड for this angle 90 minus theta. Now इसके sin 90 minus theta अगर मेरे को ढूंढना है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढना है, तो कैन आई से sin 90 minus theta will be opposite side of 90 minus theta upon the hypotenuse. Opposite of 90 minus theta क्या है? BC है, upon the hypotenuse is AC. Correct? Similarly, what you can say about cos 90 minus theta? It is the adjacent side of 90 minus theta. Adjacent side of 90 minus theta क्या है? Can I say AB है, right? So this is going to be AB upon AC, right? Next is tan of 90 minus theta. Tan of 90 minus theta is opposite side of 90 minus theta upon adjacent, right? So this is going to be BC upon AB. Now students, if you'll observe this carefully, sine of 90 minus theta is BC upon AC. Look at carefully this cos theta. It is also BC upon AC. So from here, students, can I say sine 90 minus theta is also cos theta? So we have developed one relation over here. Can I say sine of 90 minus theta is equals to cos theta? Similarly, can I say cos 90 minus theta is AB upon AC? Look over here, AB upon AC क्या है? Sin theta है, correct? So one more relation मिला मेरे को यहाँ से, that is cos of 90 minus theta is equals to sin theta. Whereas tan of 90 minus theta is BC upon AB. कहाँ पे है BC upon AB? यहाँ पे, that is your cot theta. So from here, I can say that tan of 90 minus theta is equals to cot theta. I hope you guys have understood this. In all 6 trigonometric ratios है, ठीक है? That is sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta and cot theta और उसके corresponding ratios. And next relation जो हम लोग ने पढ़ा है वो है 90 minus theta का, that is sin of 90 minus theta is equals to cos theta and cos of 90 minus theta is sin theta, tan of 90 minus theta is equals to cot theta. ठीक है? Now students, एक और रिलेशन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, दैट इज फॉर tan थीटा एंड cot थीटा. ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन आई एम सेइंग अबाउट tan थीटा स्टूडेंट्स, इट इज द रेशियो ऑफ sin थीटा अपॉन cos थीटा. ध्यान से देखो, व्हाट इज sin थीटा स्टूडेंट्स? कैन आई से AB अपॉन AC? AB upon AC whole upon what you can say about cos theta, that is BC upon AC. So this is BC upon AC. If you'll observe this carefully students, can I cancel it out this AC because दोनों के denominator में, right? So what you left with, that is AB upon BC, and AB upon BC is nothing but tan theta. So in terms of sin and cos, अगर मैं tan theta का relation पूछूं
तो यू आर सपोज टू से दैट कि tan थीटा इज sin थीटा अपॉन द cos थीटा. सिमिलरली cot theta तो tan theta का रेसिप्रोकल है. So I can say that cot theta is cos theta upon the sin theta. ठीक है. This is the another relation what we have discovered from here. That is tan theta is sin theta upon cos theta. Cot theta is cos theta upon sin theta. ठीक है. So इतने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ये जो कुछ रिलेशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. एंड बेस्ड ऑन दिस वी विल मूव अहेड विथ अवर नेक्स्ट पार्ट दैट इज द 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल ये हम लोग ने ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं. ठीक है. क्विकली रिवाइज करते हैं कि 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल में हम लोग ने साइड्स के क्या रिलेशन पढ़े थे. सपोज दिस इज माय राइट एंगल ट्राइंगल. दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री. ठीक है. मैं इसको नेमिंग कर देता हूं. दिस इज माय ए, बी एंड सी. वहां पे हम लोग ने दो चीजें सीखी थी. द फर्स्ट वन वाज opposite side of 30 डिग्री. एक ये सीखा था एंड दूसरा ऑपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री. इसका रिलेशन सीखा था विथ रिस्पेक्ट टू हाइपोटेन्यूस. नाउ साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री स्टूडेंट्स कहने से वो ए बी है इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूस, whereas side opposite to 60 degree that is BC is root 3 by 2 times of the hypotenuse that is AC. Correct. Now students ये जो AC है क्या मैं उसको AB के डिनोमिनेटर में लेके जा सकता हूँ. राइट. यहाँ पे भी AC को डिनोमिनेटर में लेके जा सकता हूँ. So this is AB upon AC is half and यहाँ पे BC upon AC is root 3 by 2 times. Okay. Now if you observe this carefully students, can I say AB upon AC जो है AB upon AC is sin of 30 degree. Correct. sin 30 का opposite AB है and AC उसका hypotenuse है. So from here sin 30 degree is half. Similarly यहाँ पे can I say ये 60 डिग्री है. 60 डिग्री के सामने वाला साइड BC है. राइट. ऑपोजिट साइड एंड AC इज द हाइपोटेन्यूस. सो फ्रॉम हियर sin 60 डिग्री इज रूट 3 by 2. करेक्ट. सो यहाँ पे मेरे को दो साइन थीटा साइन थीटा मतलब यहाँ पे थीटा 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू मिली है मेरे को 1/2 एंड साइन 60 डिग्री की वैल्यू मिली है मेरे को रूट 3/2. Now students, if you'll observe this thing carefully, can I say sin theta is nothing but cos of 90 minus theta जो हम लोग ने just अभी पढ़ा है. ठीक है. Look at this. Sin of 90 minus theta is cos theta and cos of 90 minus theta is sin theta. Right. So यहाँ पे अगर मैं sin 30 डिग्री बोलूँ so can I say this is nothing but cos of 90 minus 30 डिग्री is 90 मतलब यहाँ पे 90 डिग्री है स्टूडेंट्स is half. right. so cos of 90 degree minus 30 degree means this is cos 60 degree. okay. cos 60 degree मेरे को क्या वैल्यू मिली 1/2. सिमिलरली यहाँ पे cos of 90 minus that is 90 degree minus 60 डिग्री करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा रूट 3/2. करेक्ट ना. बिकॉज cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा अगर 60 डिग्री को थीटा हम लोग अज्यूम करें तो. राइट. सो cos 90 माइनस 60 इज cos 30. सो cos 30 डिग्री व्हाट वी हैव गॉट एज रूट 3/2. ओके. सो यहां से मेरे को चार वैल्यूज मिली. द वन इज साइन 30 इज हाफ, साइन 60 इज रूट 3/2, cos 60 is 1/2 and cos 30 is रूट 3/2. वेयर ये जो सारे एंगल्स है वो डिग्रीज में है. ठीक है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू माय 45 45 90. 45 45 90 मतलब इट इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल स्टूडेंट्स.
मीन्स ये एंगल मेरा 90 डिग्री है, दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल, करेक्ट. इफ आई एम सेइंग दिस एज P, Q एंड R, राइट, तो ये दोनों एंगल 45 डिग्री रहेंगे, करेक्ट. ओके, नाउ हम लोग ने 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल में क्या पढ़ा था कि साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री, ठीक है ना, साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री, तो PQ भी है एंड QR भी है, इज 1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनस. हाइपोटेनस क्या है? PR है, राइट. ओके, सो दिस इज PR. नाउ कैन आई से फ्रॉम these two relations, can I say PQ upon QR, sorry, PR is 1/√2. Similarly, QR upon PR भी 1/√2 मिलेगा. Okay, PQ upon PR, PQ upon PR means ये वाले 45 डिग्री के लिए PQ upon PR will be sin 45 degree, right? So this is sin 45 degree is 1/√2. एंड वहां से भी क्यू आर अपॉन पी आर वो भी साइन 45 डिग्री ही 1/√2 मिलेगा, राइट. नाउ फ्रॉम हियर अगर मैं मेरा रिलेशन यूज करूं, साइन थीटा इज कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो सिमिलरली यहाँ पे कॉस ऑफ 90 माइनस, दैट इज 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री करेंगे तो वो भी मेरे को 1/√2 मिलेगा, राइट. नाउ 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज कॉस ऑफ 45 डिग्री इज 1/√2, ठीक है. सो यहां से मेरे को दो वैल्यूज मिली, एक है साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2, सॉरी 1/√2 एंड कॉस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√2, ठीक है. नाउ और दो एंगल्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, दैट इज 0 डिग्री एंड 90 डिग्री. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस. फर्स्ट सपोज मैं एक वर्टेक्स ए ले रहा हूं एज अ फिक्स वर्टेक्स एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वर्टेक्स मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं, दिस बराबर है. ओके, इन दिस ट्रायंगल this is my B and this is my C, vertex C. Suppose ये 90 डिग्री है, right? अच्छा, what you can say about sin A, I mean the angle A. तो sin A will be, can I say BC upon AC, right? Okay, यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं ना कुछ एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, एंड दैट एडजस्टमेंट इज दिस. मैं ना ये जो एंगल A है ना, आई एम ट्राइंग टू, you know, I'm trying to make that angle as good as zero. अगर मैं वो एंगल जीरो बना दूंगा तो टेल मी वन थिंग स्टूडेंट्स, जो मेरा BC है वो कोइंसाइड करेगा, करेक्ट. मतलब B और C मेरा एक ही पॉइंट होगा, राइट, करेक्ट. सी दिस केयरफुली, ये मेरा C है ना, देखो B के तरफ क्लोज 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 जा रहा है, करेक्ट. तो B एंड C मेरा एग्जैक्टली एक ही पॉइंट हो गया, राइट. ओके, सो एंगल मेरा जीरो हो गया, दैट मीन्स मेरा BC का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है वो जीरो हो जाएगा, राइट. तो अगर मेरा डिस्टेंस जीरो हो गया सो इट मीन्स दैट जीरो अपॉन AC हो जाएगा. कब जीरो अपॉन AC होगा? जब मेरा एंगल A 0 डिग्री होगा, करेक्ट. सो फ्रॉम हियर कैन आई से साइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू जीरो अपॉन एनीथिंग इज व्हाट? जीरो, राइट. सो यहाँ पे मेरे को एक चीज मिल गई, साइन ऑफ 0 डिग्रीज. सिमिलरली अगर स्टूडेंट्स ये मेरा जो डिस्टेंस BC है अगर वो इक्वल्स टू AC हो गया, ध्यान से देखो, सी दिस, जो मेरा डिस्टेंस BC है वो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है एंड इट इज ट्राइंग टू बी इक्वल्स टू AC, करेक्ट. जैसे मेरा B ऊपर जा रहा है वैसे ही मेरा C भी ऊपर जा रहा है, राइट. सो फ्रॉम हियर अगर मेरा BC इक्वल्स टू AC हो गया तो कैन आई से कि मेरा जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, राइट. सो फ्रॉम देयर आई कैन से दैट कि साइन ऑफ 90 डिग्री, स्टूडेंट्स, साइन ऑफ 90 इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज 90 डिग्री के सामने है ना, राइट. ओके, नेक्स्ट इज फॉर कॉस A. ओके, जब कॉस A मेरा 0 डिग्री होगा, लेट अस अंडरस्टैंड दिस. अगर मेरा कॉस A, सी दिस, अगर cos, फर्स्ट ऑफ ऑल cos A is what? Adjacent upon the hypotenuse. अगर मेरा adjacent side hypotenuse के इक्वल हो गया, सी दिस,
तभी मेरा एंगल ए 0 होगा ना। देन ओनली सी दैट माई एंगल ए जो ऊपर टिप पे है वो देखो रिड्यूस हो रहा है। एज सुन एज इट इज गेटिंग रिड्यूस ना, तो मेरा ए बी यू नो दैट ए बी डिस्टेंस है जो मेरा एडजेसेंट साइड है, इट इज गेटिंग इक्वल टू माई हाइपोटेनस ए सी। सी दिस ए सी धीरे 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 बी ए बी बन रहा है, राइट? कब? जब मेरा एंगल ए 0 हो रहा है तब, राइट? ओके, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी इज कि जब मेरा एंगल ए 0 होगा तब ए बी विल बी इक्वल्स टू ए सी एंड ए बी इज योर एडजेसेंट साइड, एंड जब एंगल 0 हुआ है तो ए सी भी मेरा ए बी हो गया है। So AB gets cancelled and it is equals to 1. So cos 0 degree is equals to 1. Similarly, अगर cos 90 degree होगा तो it will turn out to be 0. ठीक है? Okay. So even that also I am writing over here. Cos of 90 degree is equals to 1. Right, students? Okay. Now यहां से मेरे को बहुत सारे स्टैंडर्ड एंगल्स मिल गए, cos 90, sin 90, sin 0, cos 0 एंड जितने भी ये टिक्स मारे, ठीक है, वो सारे स्टैंडर्ड एंगल हो गए। अब मैं क्या करूंगा, ये जितने भी एंगल्स स्टैंडर्ड एंगल्स मेरे को मिले हैं मैं एक टेबल में एज अ फ्रेम करके रख दूंगा, राइट? ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दैट इट विल बिकम प्रीटी मच इजियर फॉर अस टू मग अप दिस फॉर्मूलाज, राइट? चलो लेट अस मूव अहेड विद दिस। ओके, सपोज मैं यहाँ पे मेरे सारे स्टैंडर्ड एंगल्स लेता हूँ, थीटा जिसको मैं बोल रहा हूँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री, राइट? आपके सिलेबस में टिल 90 डिग्री है। एज सुन एज यू विल गो इन द हायर स्टैंडर्ड ये 90 डिग्री के भी आगे जाएगा, ठीक है? लेट अस फ्रेम माय ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पे साइन, यहाँ पे मेरे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएंगे, साइन, cos, then tan, okay? Next is cosec जो sin का रेसिप्रोकल है, sec जो cos का रेसिप्रोकल है, then cot जो tan का रेसिप्रोकल है, राइट? अच्छा, अगर आप लोग को याद रहेगा स्टूडेंट्स, sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 थी, ठीक है? sin 30 is 1/2, sin 45 डिग्री is 1/√2, sin 60 डिग्री is √3/2 एंड sin 90 डिग्री इज 1, ठीक है स्टूडेंट्स? अगर ये सिर्फ साइन का एंगल आ गया ना, मार्क माय वर्ड्स, आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की स्टैंडर्ड वैल्यूज मिल जाएगी, प्रोवाइडेड आपको जितना भी अभी तक मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेसिक्स फॉर्मूलाज पता है ना, वो अगर आपको याद रहेंगे तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको आ जाएंगे, ठीक है? नाउ ये जो साइन है ना, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, अगर स्टूडेंट्स आप लोग को ये मेरा बेसिक फॉर्मूला अगर याद रहेगा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ठीक है? अच्छा, इसके मदद से ना स्टूडेंट्स मेरा पूरा कॉस का कॉस की वैल्यूज आ जाएंगे। सी, अब थीटा की जगह पे 0 डाल के देखो, 0 डिग्री, साइन 90 माइनस 0 डिग्री, तो यहाँ पे भी 0 डिग्री हो जाएगा, राइट? आई विल शो यू वन एग्जांपल, साइन 90 माइनस 0 डिग्री, तो यहाँ पे भी cos 0 डिग्री हो जाएगा, ओके ओके। सो साइन 90 माइनस 0 मीन्स यहाँ पे साइन 90 ही हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू cos 0 डिग्री, करेक्ट? अच्छा, cos 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो साइन 90 की वैल्यू है, साइन 90 की वैल्यू क्या है? 1 है, सो फ्रॉम हियर cos 0 डिग्री इज 1, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं साइन 90 माइनस 60 करूंगा तो मेरे को cos 30 मिलेगा, बिकॉज 90 माइनस 60 इज 30 डिग्री। सो यहाँ पे ये √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा एंड 0 हो जाएगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट tan थीटा, एज वी ऑल नो इट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, करेक्ट है स्टूडेंट्स? मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं, जो भी कुछ हम लोग ने पढ़ा है बस सिर्फ वही अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे, ओके? साइन थीटा अपॉन cos थीटा मीन 0 अपॉन 1, स्टूडेंट्स 0 आ जाएगा, ठीक है? 1/2 अपॉन √3/2, 2 गेट्स कैंसिल, तो यहाँ पे 1 अपॉन √3 हो जाएगा, 1/√2 अपॉन 1/√2 विच गिव्स मी 1, √3/2 अपॉन 1/2, 2 गेट्स कैंसिल, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा, ठीक है? एंड 90 अपॉन 0, 90 की cos, I mean tan 90 डिग्री इज
1/0 इज स्टूडेंट्स नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड मीन्स जो डिफाइंड नहीं करता है. ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में वहां पे इंफिनिटी का भी सिंबल दिया है. ठीक है, सो इट इंडिकेट्स दैट कि इट इज नॉट डिफाइंड. नाउ एज वी ऑल नो कि कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन. ठीक है, ये 1/sin थीटा है. नाउ ध्यान से देखो कि कोसेक 0 डिग्री अगर ढूंढना है तो 1/0 करना पड़ेगा ना. 1/0 इज अगेन स्टूडेंट्स नॉट डिफाइंड है, राइट? करेक्ट. ओके, नाउ साइन ऑफ 30 डिग्री इज 1/2, तो कोसेक उसका रेसिप्रोकल होगा. तो 1/1/2 मीन्स 2 डिनोमिनेटर में, जो न्यूमरेटर में चला जाएगा. सो यहाँ पे 2 आ गया. बेसिकली जो साइन का है ना स्टूडेंट्स, वो फ्लिप कर दो. जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में लिख दो, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में लिख दो. सी दिस, ये 1/√2 है तो यहाँ पे √2/1 लिखेंगे. ठीक है, यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा. ये 1/1 मीन्स यहाँ पे 1 हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट्स जैसे साइन का उल्टा कॉस था, राइट? अब कोसेक का उल्टा सेक होगा. सी, कोसेक 90 डिग्री है वो सेक 1 हो जाएगा. करेक्ट, कोसेक 90 डिग्री 1 है ना, तो कोसेक सेक 0 डिग्री विल बी 1. फिर यहाँ पे 2/√3, यहाँ पे √2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे नॉट डिफाइंड. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, सो यहाँ पे 1/tan हो जाएगा. 1/0 इज अगेन नॉट डिफाइंड स्टूडेंट, राइट? अच्छा, tan का उल्टा फ्लिप, सो √3/1 मीन्स √3, यहाँ पे 1 हो जाएगा. यहाँ पे 1/√3. ठीक है, यहाँ पे 1/ नॉट डिफाइंड है. ठीक है, इसका रेसिप्रोकल, तो ये 1/ नॉट डिफाइंड मीन्स 0 यहाँ पे. ठीक है, ओके. सो विद द हेल्प ऑफ दिस स्टूडेंट्स वी हैव कन्वर्टेड दिस टेबल. ये टेबल स्टूडेंट्स आप लोग को बाय हार्ट करना है. नाउ इसका एक शॉर्टकट मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स. कीप इन अ माइंड, अगर मेरे को ये जो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 अगर आपको याद नहीं रहता तो एटलीस्ट ट्राई टू बाय हार्ट दिस 0, 30, 45, 60, 90. ठीक है, एंड ये याद रखो 0, 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है, कहां पे मैं एंड हुआ 4, तो डिवाइड बाय 4 करो सबको. 4, 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4. अच्छा, और सबका स्क्वायर रूट ले लो लाइक दिस. ठीक है, एज सुन एज मैंने सबका स्क्वायर रूट ले लिया स्टूडेंट्स, तो मेरे को साइन की वैल्यूज आ गई. ध्यान से देखो, 0/4. ठीक है, 0/4 इज नथिंग बट व्हाट 0, एंड 0 का रूट इज 0, तो यहाँ पे मेरे को साइन 0 का वैल्यू 0 आ गया. नाउ 1/4, ठीक है, अंडर रूट है, सो √1 तो 1 ही हो जाएगा, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 स्टूडेंट, तो ये 1/2 हो गया. Similarly, ये तो 2 1s are and 2 2s are है, right? So again this is 1/√2 because √1 is 1 itself, so 1/√2. यहाँ पे √3/4 हो जाएगा. ठीक है, अच्छा, square root of 4 is 2, तो √3/2 हो गया. This 4 gets cancelled. √1 means 1. ठीक है, this is the shortcut to mug up this sin theta का all the standard value. Okay students, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने के लिए हम लोग को है ना पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेना पड़ेगा. नाउ पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग को राइट एंगल ट्राइंगल की जरूरत होती है. ठीक है, लेट अस टेक दिस राइट एंगल ट्राइंगल एज ए बी एंड सी, और ये एंगल सी को है ना मैं थीटा बोलता हूँ. ठीक है, चलो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं फॉर दिस राइट एंगल ट्राइंगल. कैन आई से AC square is equals to AB square plus BC square, right? This is what my Pythagoras theorem says that. अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, एंड ये इक्वेशन नंबर 1 को है ना मैं डिवाइड थ्रू आउट बाई AC स्क्वायर करता हूँ. ठीक है, डिवाइड बाय AC स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स. तो उससे क्या मिलेगा, यहाँ पे AC स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 मिलेगा. ओके, सो यहाँ पे AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर हो जाएगा, राइट? ओके, कैन आई से दिस इज नथिंग बट AB अपॉन AC दी होल स्क्वायर.
मैं ऐसे होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना स्टूडेंट्स, राइट? ओके, दिस इज BC अपॉन AC द होल स्क्वायर. If you'll observe this students carefully, ये जो AB upon AC है, look at this AB upon AC. In terms of अगर मैं थीटा की बात करूं, ठीक है, कैन आई से इट इज नथिंग बट साइन थीटा. साइन थीटा देखो ध्यान से, AB अपॉन AC दे रहा है, ठीक है. सो AB अपॉन AC इज नथिंग बट माई साइन थीटा. Similarly, BC upon AC, BC upon AC, for this theta it is adjacent side and the hypotenuse, so this is my cos theta, right? So यहां से मेरे को एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मिल गई. सबसे पहले आइडेंटिटी 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है. दिस इज माय फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. स्टूडेंट्स ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस आइडेंटिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को है ना मैं डिवाइड बाय से मैं कॉस स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है. डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, इस आइडेंटिटी को मैं डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा करता हूँ. सो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos square theta plus cos square theta upon cos square theta gives me 1. Okay students, if you'll observe this carefully, 1 upon cos square theta, it is as good as 1 upon cos theta the whole square. Students, 1 upon cos theta means can I say वो reciprocal हो गया. Now 1 upon cos theta means can I say it is sec theta का reciprocal. So this is sec square theta मिल गया, and this is sin square theta upon cos square theta. It is as good as sin theta upon cos theta the whole square, and sin theta upon cos theta is tan theta, right? So this is tan square theta plus 1. So यहाँ से मेरे को दूसरी आइडेंटिटी मिल गई which is in terms of secant tan, ठीक है. Now next is divide by sin square, नहीं तो साइन बुरा मान जाएगा, राइट. डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा. सो इसी इक्वेशन को मैं डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा which is equal to sin square theta upon sin square theta gives me 1 plus cos square theta upon sin square theta, right? Okay, 1 upon sin theta it is reciprocal of cosec, so यहाँ पे डायरेक्टली मैं cosec square theta लिखता हूँ. cosec square theta is equals to 1 plus this is cos square theta upon sin square theta. This is as good as cos theta upon sin theta the whole square. Students, what is cos theta upon sin theta? Yes, it is cot theta. It means that यहाँ पे cot square theta मिलेगा. So this is my third and the last trigonometric identities. So from here students, we have studied 3 trigonometric identities. The very first one is sin square theta plus cos square theta is equals to 1. ठीक है. दूसरा है sec square theta is equals to 1 plus tan square theta. इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं sec square theta minus tan square theta is equals to 1. It's one and the same only. And last वाला cosec square theta minus cot square theta is equals to 1. बात तो एक ही है स्टूडेंट्स. मैं यूजुअली ऐसे बाहर करता हूँ जैसे स्क्वायर में लिखा है, ठीक है. sec square theta is tan square theta plus 1, cosec square theta is 1 plus cot square theta, right? Okay, with the help of this trigonometric identity students, let us move on to my first practice set.